تیرا بازو قدرت والا ہے، تیرا ہاتھ قوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یقیناً ہم اس قدرت والے بازو کے نیچے سب محفوظ ہیں۔ خداوند کا ہاتھ جو قوی ہے اور اس کا دہنا ہاتھ جو ہمیں ہر وقت سنبھالتا ہے، ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ عزیزوں کے لیے جو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ روز مل جاتے ہیں تاکہ ہم مل کر ایک مقصد کو پورا کر سکیں۔ اس 9th ڈے میں 9ویں دن میں خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خداوند خاندانوں کو، عزیزوں کو، انڈیویجول کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو برکت دے رہا ہے، اور آمین۔ یہ کلام کی قدرت ہے جو وہ ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک دعا جس کے متعلق ہم مل کر سیکھ رہے ہیں اور اپنی اپنی زندگی کا ساتھ ساتھ جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی دعا کو درست کرنا ہے تاکہ ہم بھی بہتر طور پر اس سال میں دعا کر سکیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، ہم لگاتار 3 دن سے 10ویں اس آیت، حوالے کو یس، دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا تواریخ اس کا 4 باب، اس 10 کی آیت۔ 9ویں آیت، اسی کو ہم پھر سے مل کر دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، 1 کرونیکل چیپٹر 4 ورس 9، اور یبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا کیونکہ کہتی تھی میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی ہی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے لیے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخش دیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے آج ایک اگلے حصے پر ہم غور کریں گے کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ لیٹ یور ہینڈ بی ود می۔ جب خداوند کا ہاتھ ہوتا ہے ہم محفوظ بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی پاتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آئیے مل کر اس کے ہاتھ کی طاقت کو اور قدرت والے خداوند کے متعلق چند ایک اور باتوں کو سیکھیں۔ خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں سے ہم خاص اس دعا کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ ہم اس دعا میں سے اپنی اپنی زندگیوں کے لیے برکت کو لے سکیں، اور ہم نے دیکھا یبیز کے متعلق، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی ماں نے اس کو ایک ایسا نام دیا جس کا مطلب سارو، غم اور غم کا باعث ہونا، لیکن وہ اپنی اس مصیبت میں اپنے نام کے اس نشان میں نہیں بیٹھا رہا، بلکہ اس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں خدا سے گہرا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی اس فیوچر کو بدلنے کی کوشش کی، اپنے نام کو بدلنے کی کوشش کی، اور ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کئی دفعہ ناموں کو بدلا۔ جیسے پطرس کا نام شمعون تھا، خداوند نے اس کو پطرس نام دے دیا۔ ابراہم کو خداوند نے ابراہام بنا دیا۔ ساری کو خداوند نے سارا بنا دیا۔ خدا قادر مطلق ہے ہمارا فیوچر بدلنے کے لیے۔ وہ ہمیں ابراہم کو خدا نے ابراہم قوموں کا باپ بنا دیا۔ تو بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے یہاں پر؟ جو تیسرا حصہ ہے دعا کا لکھا ہے 10ویں آیت میں، یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، خداوند تو مجھے واقعی برکت دے، میری حدود کو بڑھائے۔ اور پھر جو تیسرا حصہ ہے اس کی دعا کا وہ یہ کہتا ہے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ اب وہ اس ہاتھ کی بات کرتا ہے جو طاقتور ہاتھ ہے، جس کا حوالہ ابھی آپ نے پڑھا سام 89 ورس 13 میں، تیرا بازو قدرت والا ہے۔ وہ کس ہاتھ کو مانگ رہا ہے؟ کئی دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی، میں نے اکثر جملوں میں یہ بات دیکھی، لوگ کہتے ہیں جی اس کے اوپر تو فلاں کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر تو جی فلاں MNA کا ہاتھ ہے، MP کا ہاتھ ہے، فلاں شخص جو امیر طاقتور زور آور شخص ہے وہ تو جی اس کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں برکت پانی؟ تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، کئی دفعہ لوگ فخر بھی کرتے ہوں گے کہ ہمارے اوپر تو جی بڑے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، بڑے بڑے لیڈرز کا ہاتھ ہے، لیکن یبیس کس ہاتھ کی بات کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ جو بنانے والا ہے، کریٹر، جس نے سب چیزیں بنائیں۔ وہ اس ہاتھ کی بات کرتا ہے جس نے آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، جس نے سورج، چاند، ستاروں کو بنایا، جس نے فرشتوں کو بنایا، جو
तख्लीक करने वाला हाथ है, जो पावरफुल हाथ है, जो जोरावर हाथ है। यबीस उस हाथ के मुतालिक बात कर रहा है और वो कहता है ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी, द हैंड ऑफ गॉड ऑलमाइटी, जिस हाथ में समंदर की रेत को वो उठा लेता है, जिस हाथ के अंदर समंदर का पानी चुल्लू भर वो समंदर को ऐसे उठा लेता है, एक कतरे की मानंद उठा लेता, वो हाथ जो पावरफुल है, वो हाथ जो जब बढ़ता है तो चीजें बदल जाती हैं। यबीस के बारे में यहां पे वो कहता है तेरा हाथ मुझ पर हो। अब गौर करें, वो पर्सनल, यहां पर एक और चीज भी जो बड़ी गौर तलब है, कहता तेरा हाथ मुझ पर हो। अब उसने यहां पे ये खानदान की बात नहीं की। गौर कीजिए, यहां पर एक खास बात की गई, क्योंकि ये नाम उसको दिया गया, नाम उसका था सॉरो मेकर, गम का बाइस बना। तो उसने अपने लिए ही दुआ की, उसने ये नहीं कहा तेरा हाथ हमारे खानदान पर हो, तेरा हाथ, उसने पर्सनल, ये दुआ बड़ी पर्सनल है। और उसने कहा मुझ पर हो, क्योंकि मैं दुखी हूं, मैं मुसीबत में हूं। ये जोरावर हाथ, ये क्रिएटेड हाथ, बाइबल में लिखा है उसके हाथ के वसीला से सब चीजें वजूद में आई, उसने सब चीजें बनाई, वो सब चीजों को तख्लीक करता है। हम उसके हाथ की कारागरी हैं। बुक ऑफ एफिशियंस में लिखा है उसने हमें बनाया है। वो उस हाथ को मांग रहा है जो बनाने वाला है, जो यीशु का हाथ है, जो तख्लीक करने वाला है। माइटी हैंड, कवि हाथ, जोरावर। इंसान का हाथ थोड़ी देर के लिए होगा और फिर हो सकता है अभी आपके दोस्त का हाथ आपके ऊपर हो, कई लोगों की फेवर आपके ऊपर हो, लेकिन ऐसा भी होता है कई साल, कई महीनों में वो हाथ आपके ऊपर से उठ जाते हैं, वो हाथ बदल जाते हैं, फेवर बदल जाती है और एक वक्त में होती है, एक वक्त में नहीं। या अगर हुकूमत है, अब वो हुकूमत नहीं है तो वो हाथ खत्म हो गया। और तो यहां पे क्या लिखा है, कवि हाथ। सो वो कवि हाथ की बात कर रहे हैं। और अगर हम एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 6 में देखें तो बाइबल क्या बताती है, हाथ के मुतालिक बात करती है। अगर आप इस हवाले को यहां से पढ़ दीजिए, बाइबल में क्या लिखा है। एक्सीडस चैप्टर 15 उसकी 6ठी आयत में यूँ लिखा है, आए खुदावन तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है, आए खुदावन तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चिकना चूर कर देता है। आमीन, आमीन, आमीन। सो किस हाथ की वो बात कर रहा है, माइटी, माइटी जोरावर हाथ, जो क्या कर देता है, दुश्मन को चिकना चूर कर देता है। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुश्मन को चिकना चूर कर दिया, सलीब पर जान देकर दुश्मन की सारी ताकत को खत्म कर दिया। बाइबल क्या बताती है, तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। तेरा, ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चिकना चूर करता है। गौर कीजिए, जब दाऊद गोलायत के सामने आता है तो वो क्या मांगता है, वो कहता है कि तू भाला और बर्छी लिए मेरे सामने खड़ा है, पर मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूं। आज मेरा खुदा तुझे मेरे हाथों में कर देगा। तो वो किस चीज को पुकार रहा है, जोरावर हाथ को, माइटी हैंड को। तो आपको पता है जब खुदावंद आपको हाथ में उठा लेता है तो वो आपके हाथों में बरकत डाल देता है, वो आपके हाथों को ब्लेस कर देता है। ये वो हाथ है जो बरकत वाला, माइटी हैंड है। सो उस हाथ की यबीस यहां पे बात कर रहा है कि आई नीड योर हैंड अपॉन मी। अब वो क्यों हाथ को मांगता है, क्यों वो कहता है कि तेरा हाथ मुझ पर हो। पहली चीज अगर आपको याद हो, उसने कहा तू मुझे बरकत दे, फिर वो कहता है मेरी हदूद को बढ़ाए। अब हाथ क्यों मांगता है, ताकि मैं इसे संभाल सकूं, मैं इसको संभाल सकूं, प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि जब खुदा का हाथ आपके ऊपर होगा तो आप अपनी बरकतों को संभाल भी सकेंगे, संभाल सकते हैं और डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। ज़बूर 16 की 11वीं आयत में भी यूँ लिखा है, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा,
تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی۔ Yes. عزیز دوستو، جب خداوند کا ہاتھ آتا ہے، جب اس کی برکت جو اس نے ہمیں دی ہے اور اس کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، تو وہ برکت پھر ہم سے چھن نہیں جاتی، وہ گم نہیں ہو جاتی، وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ اس کے حضور میں کامل شادمانی ہے، ایسی شادمانی جو ختم نہیں ہو سکتی، اور دائمی خوشی جس کا آمین. کوئی اینڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ۔ سو جب ہم خداوند کے ہاتھ کو اپنے لیے مانگتے ہیں، پرسنل اپنے لیے، پھر اپنے خاندانوں کے لیے، جس شخص کے لیے آپ خداوند کے ہاتھ کو مانگتے ہیں، تو یقیناً اس کا ہاتھ مجھے اور آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی. اور جو بات ہم کر رہے ہیں، ہز ہینڈ از مائٹی، اس کا ہاتھ شادمانی بخشتا ہے، اس کا ہاتھ پراسپیرٹی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، کہ جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اس کے پروں کے سایہ کے نیچے آ جائیں گے، تو پھر شادمانی ہے، خوشی ہے، برکت ہے، اور لکھا ہے کامل شادمانی، دائمی. کامل کا مطلب ہے یہ نہیں بنائی ہوئی، پرفیکٹ شادمانی جس کے اندر لافٹر ہے. دائمی خوشی کا مطلب ہے جو چیزیں قائم رہنے والی ہیں، ہمیشہ کی خوشی ہوتی ہے. غریبی بھی ہوگی، لیکن اگر خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے تو آپ کی خوشی ختم نہیں ہوگی، شیطان اس خوشی کو چھین نہیں لے گا. بائبل یہ بتاتی ہے کہ یبیس نے یہ کہا تھا، خداوند جب تو برکت دے گا اور تو میری ٹیریٹری کو بڑھائے گا، تو مجھے تیرے ہاتھ کی ضرورت ہوگی تاکہ میں اس شادمانی کو سنبھال سکوں، اس خوشی کو سنبھال سکوں، وہ ڈائریکٹ مجھے کرتا رہے. سو بائبل میں 1 پیٹر چیپٹر 5 ورس 6 میں بڑی خوبصورت آیت دی گئی ہے. بائبل میں لکھا ہے، خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے کمر بستہ رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. یہی لکھا ہوا ہے کہ with proper time he may exalt you. proper time. تو ہم کس ہاتھ کی دعا کر رہے ہیں؟ خداوند ہمارے خاندانوں، یبیس نے دعا کی، ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں، خداوند تیرا ہاتھ ہمارے اوپر ہو. ان ڈیز کے اندر میں اسپرچل لائف میں جب ایک بیٹل چل رہی ہے آپ کی، خداوند تیرے ہاتھ کے نیچے میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو فروتن کرتا ہوں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں، خاکسار بناتے ہیں، تو آپ خدا کی حضوری میں آ کر فروتن بنتے ہیں اور اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں. اور جب آپ اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں تو لکھا ہے وہ وقت پہ آپ کو سر بلند کرے گا. خداوند نے موسیٰ کو سر بلند کیا جب when he was 80 years old. خداوند نے اس کو برکت دی اور اس نے اپنے طریقے سے اس کو سنبھالا. سو یاد رکھیں، his hand is mighty hand, his hand is righteous hand, his hand is hand with prosperity and pleasure. وہ جب اس کے نیچے آئیں گے تو پھر آپ کو پراسپیرٹی ملے گی اور برکتیں ملتی جائیں گی، اور اس کا ہاتھ پروٹیکٹڈ ہے. اس لیے وہ ہاتھ کو مانگتا ہے تاکہ وہ اپنی بخششوں کو، اپنی برکتوں کو پروٹیکٹ بھی کر سکے، کیونکہ جب اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر آپ سام 91 ورس 14 and 16 پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ ہمیں بچاتا ہے، اس کے پروں میں ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ کو پروٹیکشن ملے گی. بائبل میں ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے اس کے ہاتھ کے حوالہ سے. بائبل میں لکھا ہے آئزیہ چیپٹر 49 ورس 6 میں، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے. سو کس ہاتھ کو مانگتا ہے؟ جس پر ہماری تصویر چھپی ہوئی ہے، جس پر ہماری تصویر چھدی ہوئی ہے. خداوند نے اس کو بنایا ہے. زبور 91 ورس 40 to 16 میں کیا لکھا ہے؟ سام 91، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زبور ہے جس کو ہم میں سے بیشتر نوجوان بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو سیکھتے ہیں، اور اس کی آیات ہمیشہ ہمیں برکت دیتی ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے اپنا دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا،
मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। So what he is asking, protected hand, जो नजात, जो उम्र की दराजी से आसूदा करता है, जो मुसीबत से छुड़ाता है। जैसे आपका कोई बेटा या बेटी अगर किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उसे फौरन उसका हाथ पकड़ेंगे। तो यबीस कहता है, आई नीड योर हैंड गॉड, मुझे तेरा हाथ चाहिए, क्योंकि जब खुदा का हाथ होता है हमारे ऊपर तो फिर बरकत होती है। खुदा के हाथ के नीचे हम प्रॉस्परस होते हैं, खुदा के हाथ के नीचे हम प्रोटेक्टेड होते हैं। कोशिश डेविल की क्या कोशिश है कि हम खुदा के हाथ के नीचे कभी ना रहें। हाँ, वो ये जानता है कि अगर ये इसके हाथ के नीचे आ गए तो ये तो बरकतों से मामूर हो जाएंगे, इनके पास तो प्रोटेक्शन आ जाएगी, इनके पास तो सरफराजी आ जाएगी। सो जब वो हाथ चाहिए, जब ये उसके हाथ के नीचे से निकल जाएंगे, इसीलिए वो हमें खुदा से दूर रखता है। और ये कहता है हम उसके हाथ को ना मांगें। हमारी दुआओं में कितनी दफ़ा हमने ये दुआ की, खुदावंद तेरा हाथ मेरे बिजनेस पर हो, खुदावंद तेरा हाथ मेरे बच्चों पर हो, खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो, खुदावंद तेरा हाथ मेरी कलीसिया पर हो, खुदावंद तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि जब उसका हाथ बड़ा रहेगा तब बरकत खुली रहेगी। Amen. लेकिन अगर खुदा का हाथ उठ जाएगा तो समझे बरकत दूर होती जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में बहुत जगहों पे ये लिखा गया है। आइजिया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। लिखा है, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। सो खुदा का हाथ संभालता है। जब हम फिसल रहे होते हैं, हम दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो खुदा का हाथ क्या करता है? हमें संभालता है, हमें गिरने से बचा लेता है, हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, हमें आसरा देता है। और मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, हम नहीं जानते इस वक्त आप किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, पर मैं ये ज़रूर जानता हूं कि अगर आप खुदा के हाथ के नीचे आए, जैसे यबीस ने कहा, एक्सटेंड ब्लेस मी, एक्सटेंड माई टेरिटरी, तेरा हाथ मुझ पर हो, तेरा हाथ मुझे संभाले, तेरा हाथ मुझे बरकत दे ताकि मैं इस बरकत को संभाल सकूं। तो हमें क्या करना है? इस बात को याद रखनी है। अज़रा ने एक दुआ की, अज़रा की किताब अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर बाद में पढ़िएगा, चैप्टर 8 वर्स 21 से 23 में वो एक बात अपने लोगों को बताता है और वो कहता है कि मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई और खुदावंद हजूर अपने बाल बच्चों और अपने माँ के लिए सीधी राह तलब करने को फिरौतन बने। ये मुनादी करवाई कि हम फिरौतन बन जाए। और फिर उसने कहा कि हमने खुदावंद से दुआ की कि हमने अपने बादशाह से सिपाहियों के जत्थे ना मांगे, क्योंकि हमने बादशाह को क्या बताया था। गौर कीजिए, ये हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर आप ये पढ़ दें 22वीं ये हवाला। क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका ज़ोर और कहर उन सब के ख़िलाफ़ है जो उससे तरक करते हैं। सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। आमीन आमीन। अब यहाँ पर गौर कीजिए क्या लिखा है कि हमारे खुदा का हाथ। वो किसका जिक्र कर रहा है? खुदा का हाथ। खुदा का हाथ कौन सा? भलाई का हाथ। किसके साथ है? कह रहा है बादशाह को हमने बताया था कि हमें सिपाहियों के जत्थों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। जब खुदा का हाथ हमारे ऊपर है तो वो हमें दुश्मन से बचाएगा। तो जब हम दुआ करते हैं, अगर आप ये दुआ करें, खुदावंद हम कई दफ़ा परेशान होते हैं, दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टेड हैंड को मांगें, अपने घरों की, अपने गाड़ियों की, अपनी ज़िंदगी की प्रोटेक्शन के लिए
खुदावन से कहें, खुदावन मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है, पर तेरा हाथ मैं चाहता हूं, जो भलाई का हाथ है मेरे ऊपर बना रहे, ताकि मेरे दुश्मनों से मुझे बचाए। आपको पता है आपका दुश्मन इबलीस है और उसकी फौजें हैं, वो बीमारियों के जरिए से आप पर अटैक करते हैं। जब आप उसके हाथ के नीचे आएंगी, जितनी मर्जी बीमारी सख्त क्यों ना हो, अगर खुदा की मर्जी में आप के लिए लिखा है कि आप जिंदा रहेंगे, तो खुदा आपको उसमें से बचा ले। लेता है। जैसे सिदरक मिसक अबदनजू, क्यों हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा के हाथ ने उनको बचाया, खुदा खुद वहां पर आ मौजूद हुआ। हम देखते हैं दानियल को किस तरह शेरों की मान में खुदा ने, उसके हाथ ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि वो भलाई का हाथ था। और जब भलाई का हाथ खुदा का हमारे खानदानों पर आएगा तो क्या होगा, वो हमें हमारे दुश्मनों से रिहाई देगा। और हम इस बात की मुनादी करेंगे और कहेंगे कि यस, हमने रोजा रखकर दुआ की और कहा खुदावन तेरा हाथ हमारे ऊपर रहे। मुझे नहीं पता आपकी दुआ कैसी है डे 9 में, आप किस तरीके से दुआ कर रहे हैं। आप हो सकता है बड़े मायूस हों, आपको समझ नहीं आ रही कैसे दुआ करें, तो यबीस की मानंद उसके हाथ को मांगें, जो आपको, जो जोरावर हाथ है, जो आपको खुशी बख्शेगा, जो इंसाफ करने वाला खुदा है। अगर आपके साथ बेइंसाफी हो रही है तो खुदा का हाथ इंसाफ दिलाएगा। उस प्रोटेक्शन वाले हाथ को मांगें जो आपको महफूज कर लेगा अपने पैरों के नीचे, और वो आपको खुशी देगा, क्योंकि खुदा है जो आपको बरकतों से मामूर कर सकता है। सो आइए हम सब उसके हाथ के नीचे जाएं। आज मैं ये चाहता हूं कि हम सब दुआ करें अपने अपने खानदानों के लिए, और हम ये कहें कि खुदावंद, हम उस हाथ को मांगते हैं जिस पर तेरे हमारी सूरत छिदी हुई है। वो हाथ जिसने हमको बनाया है, वो हाथ जो मल्टीप्लाई कर देता है, वो हाथ जब उठता है तो आंधियां और तूफान रुक जाते हैं। खुदावंद ने हाथ बढ़ाया और आंधियां और तूफान रुक गए। खुदावंद ने हाथ बढ़ाया और अंधों को आंखें दे दी। खुदावंद ने कोड़ियों की तरफ हाथ बढ़ाया तो कोड़ जाता रहा। खुदावंद आपके फाइनेंसेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए यबी इसकी मानंद कहे, खुदावंद बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो। क्योंकि जब उसका हाथ आप पे ऊपर रहेगा तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत, कोई सुपर पावर भी आपके अगेंस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मालिकों का मालिक, मालिक कुल दो जहान, उसका हाथ आपके ऊपर है। कोई चीज आपको छू नहीं सकेगी, आपके शोला आपको जरर नहीं पहुंचा सकेगा, नदियां आपको ना डबो सकेंगी, क्योंकि उसका हाथ आपके ऊपर है। और जब उसका हाथ है तो रहमत बनी रहेगी, कोई आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि लिखा है सादक के लिए तारीकी में भी नूर चमकता है। आइए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। आजकल चोरियां और डकैतियों की वारदातें हर जगह पर हैं, पूरी दुनिया पर है। तो खुदावंद से मांगे, खुदावंद के हम जानते हैं कि अगर तू हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। इसलिए तेरा हाथ चाहिए हम पर। तू हमें, हमारे बच्चों को, माएँ कई दफ़ा परेशान होती हैं जब उनके बच्चे बाहर जाते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं। खुदावंद तेरा हाथ इनके ऊपर हो, तू इनको बचाता रहे ताकि इन पर कोई आँच ना आए। आइए हम सब मिलकर दुआ करें और खुदावंद से मांगें कि खुदावंद योर माइटी हैंड जो बरकत देता है वो हमारे ऊपर हो। आइए हम दुआ करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा। आइए, ये मदद आसमान से, हमारे खुदा से हमें आ सकती है। इसलिए जब हम आज खुदावंद के हाथ की कुदरत को एक दफ़ा फिर जान चुके हैं, तो आइए हम मिलकर दुआ करें। हम तमाम अजीज़ों के लिए जो किसी भी मुश्किल में है, जिनको कई दफ़ा ये लगता है कि शायद मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, या मेरे हालात क्यों इतने बुरे हैं, या मेरी मुसीबतें क्यों बहुत ज़्यादा हैं।
खुदावंद का हाथ हम सब के लिए मुहैया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम फरोतनी के साथ उसके कदमों में झुकें Yes. और उससे मांगे जो फ्याजी से देता है और सबको देता है। Yes. तू जो बहुत मेहरबान बाप है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा कि तेरे कलाम में आज फिर से हौसला अफजाई की बातें हमें मिलनी कि तूने कहा कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा। आए खुदावंद, तू तो मदद के लिए हर वक्त तैयार खड़ा रहता है, लेकिन कई दफ़ा हम बेवफा हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हमें समझ नहीं आती। हमें सबको Yes. मुआफ़ कर और बख्श दे कि खुदावंद इन दिनों तूने जिन अजीज़ों को भी फजल दिया कि वो दुआओं में, रोज़ों में, गिरिया ज़ारी में झुक सके, तो उनके दिल को जानता है, उनके मसलों का हल तेरे पास है। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर एज ए ग्रुप तेरे कदमों में आते हैं। कोई भी किसी मुल्क में है, किसी और दूसरी जगह पर है, पर वो हमारे साथ मिल गए ताकि हम तेरे कदमों में आए। तो खुदावन तू हम सब को देख और अपनी यीशु के नाम शफकत से। वाला, Yes. बरकत वाला, कुदरत वाला, रहमत वाला हाथ रख। Yes. और मेहरबान खुदावन तू हाथ। ज़रूरतों को पूरा कर, Yes. तू ख्वाहिशों को पूरा कर, तू Yes. मुश्किलात को Yes. दूर कर, Yes. तू बीमारियों को दूर कर आमीन। और बख्श दे के हम ख़ास दुआ गो हैं कि इस साल हम सब रूहानी तौर पर बढ़ें, हमारे ख़ानदान बढ़ें, हमारे बच्चे तुझ में बढ़ें। इनक्रीज़ कर खुदावन तू हमारी टेरिटरीज़ को कि हमारे जहन बढ़ें और हम बुराई के ख़यालात से निकल कर भलाई के ख़यालात में आ सकें। यीशु मसीह के नाम से तू हम सब को और हमारे ख़ानदानों को बरकत दे और तेरी बरकत का हाथ कभी हमसे जुदा ना हो। इन तमाम बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे Yes. जो बड़े ईमान से बैठ जाते हैं कि तू कादर मुतले खुदा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, नहमिया की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। लिखा है, नहमाया प्रोक्लेम करता है कि मुझे फेवर क्यों मिली। नहमाया प्रोक्लेम करता है कि किस तरह से मैं अपने इरादों में, अपने मकसद में कामयाब हुआ। वो ये कहता है, चूँकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज़ कबूल की। अगर खुदा की शफ़क़त, मेहरबान हाथ आपके ऊपर है, आप किसी जगह पर भी जाएंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। सो हमारी ये दुआ है कि इन दिनों जब हम प्रेयर एंड फास्टिंग को क्लेम कर रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू आए। अगर आपका बिज़नेस अभी तक नहीं चला, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, कोई भी मसले कुछ भी हो सकते हैं, पर दुआ सब चीज़ों का हल है। और आप दुआ में ठहरे हैं तो ज़रूर यकीन रखिए, अगर उसका हाथ है तो खुदा दुआओं को सुनेगा। खुदावंद ने मौका दिया तो फिर हम अगले हिस्सा को कल इसी तरह से सुनेंगे। मे गॉड ब्लेस bless यू। you.